Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do the question answer and back exercise of chapter The Coastal Plain and the Islands. So let's get started. First, this I have written in a notebook. So let's check from there. Answer the following questions. First, where do the eastern and the western coastline end? So, the eastern and the western coastline it end at Kanyakumari. So, Kanyakumari is the end point of both the coastline. तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है कहाँ ख़त्म होती है. तो ये जो दोनों कोस्ट लाइन है आपकी वो कन्याकुमारी में ख़त्म होती है. सेकंड, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लाइन. इन दिस यू हैव टू टेल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट लाइन. आंसर, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर divided into three parts. First, the Gujarat coast, second, the Konkan coast, and third, the Malabar coast. So they are divided into three parts and the names are given here. Okay. सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कितने भागों में डिवाइडेड है. तो वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है गुजरात कोस्ट, दूसरा है कोंकण कोस्ट और तीसरा है मलबार कोस्ट. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ लगून. सो इन दिस यू हैव टू डिफाइन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लगून. लगून is small and shallow water lake. Okay, so lagoon is a small and shallow water lake. So let me show you here also. Lagoon is small and shallow salt water lake. Okay, so it is a small and shallow salt water lake and let me show here. So you can see it is the picture of lagoon. तो लगून क्या होता है बेटा. लगून का मतलब होता है एक खारे पानी की का लेक. शैलो का मतलब क्या होता है. शैलो का मतलब होता है जो थोड़ा गहरा होता है. ठीक है, उसका मतलब होता है लगून. नेक्स्ट इज फोर्थ, नेम द पोर्ट्स लाइंग अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. So you have to name the ports that are along the eastern coastal plain. Answer, the ports lying along the eastern coastal plains are first Visakhapatnam, second Pradvip, third Kolkata. Okay, so आपसे पूछा गया है फोर्थ क्वेश्चन में कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आने वाले जितने भी सी पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स का मतलब बंदरगाह, उनके नाम बताने हैं जो मेन है. तो वो है आपका पहला विशाखापट्टनम, दूसरा प्रद्वीप और तीसरा कोलकाता. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. हाउ आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन different from the western coastal plain. Here you have to differentiate between the two plains. So you have to write like this: eastern coastal plain, western coastal plain. Okay, first, the eastern coastal plains are area between the eastern ghats and the eastern coast line. So the area that is in between the eastern ghat and the eastern coastline, we call that area eastern coastal plains. Western coastal plains. Western coastal plains are area between the western ghats and the western coast line. So the area that is in between the western ghat and the western coastline, we call it western coastal plain. ओके, तो बेटा आपको ना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन
और ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में क्या अंतर है वो बताना है। तो हम आपको इस टाइप में लिखना है और जो पॉइंट आप यहाँ बताओगे ना उसी सेम पॉइंट आपको यहाँ उसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट पॉइंट भी बताना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट लाइन और ईस्टर्न घाट के बीच में जो एरिया आता है ना उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का मतलब जो वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट लाइन के बीच में जो एरिया आता है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। ओके, सेकेंड, it is divided into 3 parts that are the Gujarat coast, the Konkan coast and the Malabar coast. So eastern coastal plain, they can be divided into 3 parts. So they are Gujarat coast, Konkan coast and the Malabar coast. Western coastal plain, it is divided into the Coromandel coast and the northern Sircars. So western coastal plain, they can be divided into 2 parts. First is the Coromandel coast and the second one is the northern Sircars. Okay, तो बेटा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो जो कि है गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मलबार कोस्ट। और वेस्टर्न कोस्ट को जो है डिवाइड कर सकते हो कोरमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सिरकार्स में। तो ये दोनों डिफरेंस है आपके दोनों कोस्टल प्लेन्स के अंदर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको अगर मैप में भी देखना है तो आप ये देखो, ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर कोरल रीफ्स? Coral reefs are rich of rocks in the sea formed by deposit of corals. Okay, so corals they get deposited on rock, okay, and they form coral reefs. What are corals? Corals are very small sea animals. They are very soft but has a hard up covering on it. Okay, so they are called, they form a reef that we call it a coral reef. तो बच्चों इसमें आपसे पूछा गया है कि कोरल रीफ से आप क्या समझते हो। कोरल रीफ जो होता है ना वो जो है एक मीन्स बहुत बड़े पत्थर जैसा होता है, समुंदर के अंदर होता है। और ये कैसे बनता है, जब बहुत सारे कोरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं ना एक जगह तो वो एक पत्थर जैसा कुछ बना लेते हैं और उसको कोरल रीफ कहते हैं। कोरल्स क्या होता है? कोरल का मतलब होता है मूंगा, हिंदी में मूंगा होता है। इसका मतलब ये एक छोटा सा ना सी एनिमल होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, बट उसकी जो शेल होती है ना जो जिसके अंदर वो होता है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कोरल। ओके, और ये कोरल से क्या बनता है? कोरल रीफ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफरेंशिएट बिटवीन द लक्षद्वीप and the Andaman and Nicobar Island. So you have to differentiate between them. Again you can write like this: first Lakshadweep Island, second Andaman and Nicobar Island. First is, it is a group of 36 islands in Arabian Sea. So Lakshadweep Island is a group of 36 islands and it is in the Arabian Sea. Whereas the Andaman and Nicobar Island, it is a group of 300 islands in the Bay of Bengal. So लक्षद्वीप आइलैंड बेटा 36 जो है आइलैंड से का एक ग्रुप है जो अरब सागर के अंदर है, और अरेबियन सी 300 आइलैंड का ग्रुप है जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है। ठीक है, तो आपको मैं जो है यहाँ पे भी दिखा देती हूँ मैप में। देखो ये है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इसका लक्षद्वीप आइलैंड्स। सेकंड, these islands are made of coral reefs, so they are formed because of coral reefs, whereas Andaman and Nicobar Islands, these islands were formed by volcanic eruption.
So because of the volcanic eruption, these Andaman and Nicobar Islands they are formed. तो बेटा लक्षद्वीप आइलैंड तो कोरल रीफ से बना हुआ है, की वजह से बना हुआ है, बट अंडमान एंड निकोबार ना जो ज्वालामुखी के फटने की वजह से जो आइलैंड बना है वो है लक्षद्वीप आइलैंड. ओके, सो वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स हियर, टोटल 7. नाउ मूविंग ऑन टू बैक एक्सरसाइज B. Fill in the blanks. Cotton dash and dash are grown by farmers in the Gujarat coast. So tobacco and groundnut. So cotton, tobacco and groundnuts they are grown by farmers in the Gujarat coast. तो गुजरात कोस्ट में जो है टबैको और जो है ग्राउंडनट इसकी खेती होती है, और कॉटन तो दिया ही हुआ है. ठीक है, उसके बाद होता है सेकंड. Konkan coast lie between the dash and dash. So Konkan coast lie between the Gulf of Khambat and Goa. Konkan coast जो है किस किस के बीच में है बेटा, वो है गल्फ ऑफ खम्बात और गोवा के बीच में. Dash is the longest beach. Marina Beach is the longest beach. Okay, तो सबसे लंबा बीच कौन सा है, मरीना बीच. The Lakshadweep Islands are made of dash. So this we have done in the question answer also. So Lakshadweep Islands are made of coral reefs. तो लक्षद्वीप आइलैंड किससे बना है, कोरल रीफ से बना है. ओके, मूविंग ऑन टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. दिस इज पार्ट सी. फर्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट, डू यू रिमेंबर? यस, द टोटल लेंथ इज 6000 किलोमीटर्स. तो जो टोटल लेंथ है इंडिया की जो कोस्ट लाइन की वो है 6000 किलोमीटर. हाउ मैनी आइलैंड्स मेक द लक्षद्वीप आइलैंड्स? दिस ऑल्सो वी हैव डन इन क्वेश्चन आंसर्स. सो टोटल 36 आइलैंड्स दे मेक अप द लक्षद्वीप आइलैंड. तो यहाँ पे 36 करेक्ट आंसर है, क्योंकि 36 आइलैंड से मिलके एक लक्षद्वीप आइलैंड्स बनते हैं. द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट. जो सबसे सदर्न पॉइंट है इंडिया का, जो कि कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, ये कौन सा है, इंदिरा पॉइंट. ये रहा पिक्चर इंदिरा पॉइंट का. ठीक है, नाउ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर मेड फ्रॉम, दे आर मेड फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन. देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक इरप्शंस. ओके, तो अंडमान एंड निकोबार जो है ज्वालामुखी के फटने की वजह से बना है. ठीक है, नेम द फॉलोइंग. द मेन सी पोर्ट ऑफ गुजरात, द मेन सी पोर्ट ऑफ गुजरात इज कांडला. जो प्रमुख बंदरगाह है गुजरात का वो है कांडला. द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे ज़्यादा बिजी बंदरगाह है मुंबई. द कोस्ट फेमस फॉर लगून्स, तो लगून्स कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे होते हैं लगून्स का मैंने अभी अभी मतलब बताया है. लगून्स का मतलब स्मॉल एंड शैलो सॉल्ट वाटर लेक, यानी कि जो खारे पानी का जो लेक होता है ना वो कहाँ पे होता है मोस्टली, वो होता है आपका मलबार कोस्ट में, जो कि साउथ में है. ठीक है, जहाँ पे कोकोनट वगैरह के पेड़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं. द लॉन्गेस्ट बीच, लॉन्गेस्ट बीच तो अभी अभी करवाया था, फिलिप्स में भी करवाया है, वो है मरीना बीच. द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दिस ऑल्सो वी हैव डन इन द MCQs. सो इट इज द इंदिरा पॉइंट. ओके, इंदिरा पॉइंट जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का. उसके बाद आता है फाइंड हॉट्स. फाइंड द नेम ऑफ द कैनाल दैट सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अब अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो सेपरेट करने वाला चैनल, उसका जो है नाम, उस चैनल का जो है आपको नाम बताना है. तो ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए उसके लिए. ठीक है, तो उस
चैनल का नाम है बेटा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इज द चैनल दैट सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। एक्टिविटी, दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ and then you can match from the PDF afterwards. Okay, on the map of India, mark the seaports, the islands and the coastal region. तो जो आपका जो है इंडिया का मैप है, जैसे इंडिया का मैप होता है ना, उसमें आपको ना जैसे सबसे पहले तो क्या आपको जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और जो ये कोस्ट लाइन है उसको शो करना है, जो ये पिंक कलर से शो हुआ है। फिर आपको आइलैंड्स बताने हैं, 2 आइलैंड है ना आपके पास, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और जो है लक्षद्वीप आइलैंड है, ये बताने हैं। उसके बाद जो मेजर सी पोर्ट्स है, तो मेजर सी पोर्ट्स में आप जो बुक में दे रखा है ना, जैसे कि मुंबई है, मैंगलोर है, ठीक है, और कोची है, ये सारे आप बता सकते हो। ठीक है, मेजर सी पोर्ट्स में। तो ये आपको मैप में खुद फिल करना है, उसके बाद जो मैं PDF भेजूंगी उसमें से आप मैच कर सकते हो कि आपने ठीक फिल किया है या नहीं। ओके, सो दैट इज योर एक्टिविटी। सो with this we have completed our chapter. So I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.